નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 10ની અંદર આપણી कविता 5 मीराबाई के पद जिनकी लेखिका हैं मीराबाई उसे समझने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, तो पहले अब हम मीराबाई का परिचय प्राप्त कर ले। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। दुदाराम स्वयं वैष्णव भक्त थे। उनके परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। उनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर वो विरक्त हुई और मीरा ने पहले वृंदावन और बाद में वो द्वारिका चली गई। यहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त हैं। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण स्वरूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती हैं और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती हैं। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद की अभिव्यक्ति करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भवसागर पार करने का आनंद कवियत्री को भाव विभोर बना देता है। तीसरे पद में श्री कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे मीराबाईनो परिचय समझ्या। એવું માનવામાં આવે છે કે મીરાબાઈ છે એ કૃષ્ણના અનન્ય યાની કે પરમ ભક્ત હતા અને એનો જન્મ છે એ મેડતા જિલ્લો જોધપુર એની નજીક કુડકી નામના એક ગામની અંદર રાવ રતનસિંહ રાઠોડના ઘરે થયો હતો। મીરાબાઈ જ્યારે 2 વર્ષના હતા ત્યારે જ એના દાદા દુદારાવ એને પોતાની સાથે મેડતા લઈ ગયેલા। શું કામ લઈ ગયા હતા? કારણ કે મીરાબાઈની માતાનું મૃત્યુ થયું હતું। દુદારાવ પોતે શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે વૈષ્ણવ ભક્ત હતા અને એની સાથે જ મીરાબાઈ રહ્યા અને મોટા થયા। પરિણામે બાળપણમાં જ મીરાબાઈ છે એ કૃષ્ણના પરમ ભક્ત બની ગયા। એમના લગ્ન છે એ રાણા સાંગાના સૌથી મોટા પુત્ર કુંવર ભોજરાજની સાથે થયા। વિવાહના 7 વર્ષ બાદ જ ભોજરાજનું પણ અવસાન થયું એટલે કે સ્વર્ગવાસ થયો। હવે એ પોતાનો વધારાનો જે સમય હતો એ સત્સંગ અને પૂજાપાઠમાં જ વિતાવતા। પરિવારે એમને ખૂબ જ દુઃખ આપ્યું અને એટલે એ પીડા અને દુઃખથી મીરાબાઈ છે એને વૈરાગ્ય આવ્યું એટલે કે વિરક્ત થયા અને પહેલાં એ વૃંદાવન જાય છે અને ત્યાંથી એ કૃષ્ણની ભક્તિ માટે દ્વારિકા જતા રહે છે। ત્યાં એમણે જીવનના અંતિમ સમય સુધી પોતે રહે છે। મીરાબાઈએ પોતે જે પદોની રચના કરી છે એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ સ્વરૂપે એમણે કેટલાક પદો ગાયા છે જે મીરા પદાવલીના નામથી આજે પ્રચલિત છે। બીજા પદમાં મીરાબાઈને અહીંયા એના જે પદો છે એ પદોમાં એમણે શ્રી કૃષ્ણને જ પોતાના આરાધ્ય અને गिरधर गोपाल कही અને વિલક્ષણ રૂપ છટા આપી અને અનન્ય
પોતાનો પ્રેમ છે એ પ્રેમ એમણે પોતાના પદો દ્વારા વ્યક્ત કર્યો છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો મીરાબાઈના 3 પદ આપ્યા છે. પહેલા પદની અંદર મીરાબાઈ છે એ કૃષ્ણના પ્રેમમાં પાગલ બની અને સમગ્ર સંસારને છોડી અને સાધુ સંતોની સાથે રહી કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન બની જાય છે. અને એટલા માટે એ લૌકિક મોહનો ત્યાગ કરી અને પોતાના આરાધ્ય અને અનન્ય એવા ભગવાન સ્વરૂપના પ્રેમમાં ભક્તિભાવમાં એ ડૂબી જાય છે. બીજા પદની અંદર મીરાને શ્રી કૃષ્ણના નામરૂપી અમૂલ્ય રત્ન પ્રાપ્તિ થઈ છે અને એનો અત્યંત આનંદ એ પોતાની પદોની અંદર અભિવ્યક્ત કરે છે. અને મીરા કહે છે કે સદ્ગુરુની કૃપાથી પોતે ભવસાગર છે એ પાર ઉતરી જશે. આમ ત્રીજા પદની અંદર કૃષ્ણ છે એ ભક્તિમાં મતવાલી બની અને મીરાએ સંસારના ત્યાગની ચરમ સીમા પર પહોંચીને ગિરધર નાગરની શરણાગતિને સ્વીકાર કર્યો છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે મીરાબાઈ છે એ પોતાના જીવનના અંતિમ સમય સુધી એ પોતે દ્વારિકામાં જ ભગવાનના ચરણોમાં રહીને જ ભક્તિ કરતા હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ મીરાબાઈના જે 3 પદ આપણી કવિતા 5ની અંદર આપ્યા છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. मीरा के पद पद्य 5 कवयत्री मीराबाई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। असुअन जल सींच प्रेम बेली बोई। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। तो यहाँ पर मीराबाई अपनी पहली पंक्ति में कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा ना कोई, यानी गिरधर गोपाल ही मेरे लिए सब कुछ हैं, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा न कोई साधु सकल लोक जोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। असुवन जल सींच प्रेम बेली बोई। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। तो अब हम इस पहले पद के जो शब्द हैं उसे समझ लें। यहाँ पर हमारा पहला शब्द जो है वो है सकल, यानी कि सभी। लोक मानो संसार। जोई यानी कि देख लिया। छोड़या यानी त्याग दिया। सगा यानी सगे और सभी रिश्तेदार। सोई मतलब वह भी। साधु यानी साधु महात्मा संत। लोकलाज सांसारिक लाज और शर्म। खोई मतलब गमा दी। भगत यानी ईश्वर की भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं वो। राजी मतलब आनंद। जगत यहाँ अर्थ है संसारिकता में लिप्त व्यक्ति जो संसार में रहते हैं। असुवन यानी आंसुओं के। प्रेम यानी प्रेम बेली यानी प्रेम रूपी लता। बोई मतलब बोना। दधी मतलब दही। मथी मतलब मथकर। ध्रुत यानी घी। काढ़ी मतलब निकाल कर। डार दई यानी फेंक दी। एक और रख दी, 2 अर्थ होता है, या तो फेंक दी या तो एक और रख दी। छोई यानी बिना रस की गंडेरी, उनका एक अर्थ छाछ भी होता है। भेजो मतलब भेजा।
पिय मतलब पीकर, मगन यानी मग्न, जाने मतलब जान गए, राम लगन भगवान से लगन लगना, होनी मतलब होनी, होई सो होई जो होना हो। तो यहाँ पर मीराबाई कहती हैं, क्या कहती हैं, पहले हम ये समझ लें कि मीराबाई कहती हैं कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो यहाँ पर मीराबाई भी इसी बात का उल्लेख करते हुए कहती हैं। मीराबाई कहती हैं कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार हैं। हे महानुभावों, मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। वे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई, बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठकर लोकलाज खो दी है। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। गिरिधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। वे कहती हैं कि जैसे हम दही को मथकर घी निकाल लेते हैं और उसके बाद मथनी को एक और हम रख देते हैं, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती हैं कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था, उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण से उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीरा कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा होगा। तो यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मैंने गिरधर गोपाल, मेरे तो बस एक गिरधर गोपाल हैं, मेरा कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो साधु संतों के साथ बैठकर लोक लज्जा भी खोई, भाइयों को छोड़ा, बंधुओं को छोड़ा, सगा संबंधी सबको मैंने छोड़ दिया। साधु और संतों के साथ बैठकर मैंने लोक लज्जा भी खो दी। मैं तो भगत को देखकर राजी होती हूँ और जगत को देखकर दुखी होती हूँ, यानी जगत के लोगों को देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ। असुवन के जल सींच कर मैंने प्रेम रूपी लता बोई है। जिस प्रकार दही मथकर उनसे घी निकाल लेने के बाद मथनी को एक और रख देते हैं, उसी प्रकार मैंने सब कुछ एक और रख दिया। राणा ने विष का प्याला भेजा था, वो प्याला पीकर भी मैं हंसी। अब तो ये बात चारों ओर फैल गई है कि भगवान के साथ मेरी लगन लग गई है। मीरा कहती हैं कि अब जब चारों ओर ये बात फैल ही गई है तो जो होना हो सो होए, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે એનો અર્થ એકવાર આપણી માતૃભાષામાં પણ સમજી લઈએ। મીરાબાઈ કહે છે કે જેણે ગિરધર અર્થાત પર્વતને ઉંચકી લીધો હતો તે જ શ્રી કૃષ્ણ મારા જીવનનો એકમાત્ર આધાર છે। હે મહાનુભાવો, મેં સમગ્ર સંસારમાં શોધખોળ કરી પણ શ્રી કૃષ્ણ સિવાય મારું બીજું કોઈ નથી। મીરાબાઈ કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે મેં મારા ભાઈઓ, બંધુઓ અને સગા સંબંધી બધાને છોડી દીધા છે અને સાધુ સંતો પાસે બેસી બેસીને લોકલાજ પણ મેં ગુમાવી દીધી છે। સાંસારિક લોકોને જોઈને મને રડવું આવે છે અને ભગવાનના ભક્તોને જોઈને મને આનંદ થાય છે। મીરાબાઈ કહે છે કે ગિરધર ગોપાલ માટે મેં સતત વહેતા આંસુરૂપી જળથી મેં પ્રેમ વેલ ઉછેરી છે અને એને સિંચી પણ છે।
તે કહે છે કે જેવી રીતે દહીંને આપણે મથીને ઘી કાઢ્યા પછી છાશના પાણીને એક બાજુ મૂકી દઈએ છીએ, છાશને પાણીમાં એક બાજુ મૂકી દઈએ છીએ, તેવી જ રીતે મેં આ ભવસાગરનું મંથન કરીને શ્રી કૃષ્ણ રૂપી સાર તત્વ એકત્રિત કર્યું છે અને સંસારિકતાને બાજુએ મૂકી દીધી છે. મીરાબાઈ કહે છે કે રાણાજીએ ઝેરનો પ્યાલો મોકલ્યો હતો, પરંતુ મેં રાજી ખુશીથી તે પી લીધો હતો. મીરાબાઈ કહે છે કે હવે તો શ્રી કૃષ્ણ સાથે તેમના પ્રેમની વાતો છે એ ચારે બાજુ ફેલાઈ ચૂકી છે, બધાને એની ખબર પડી ગઈ છે. મીરાબાઈ કહે છે હવે તો ભગવાન સાથે તેમની પ્રીત બંધાઈ ગઈ છે, ભલે જે થવાનું હોય તે થાય. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે મીરાબાઈને આ સંસારની અંદર ભગવાન સિવાય બીજા કોઈ બાબતની ચિંતા જ નથી, કારણ કે એ પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમમાં મગન થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આ જ કવિતાનું જે બીજું પદ છે એને પણ समझिए. विद्यार्थी मित्रों, अब हम इसी कविता के दूसरे पद को भी समझ लें. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जश गायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जश गायो. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पहले अब हम इस पद के जो शब्द हैं उनके अर्थ को समझ लें. पायो, पायो यानी पाया मतलब प्राप्त किया. दूसरा शब्द है रतन यानी कि रत्न. अमोलक, अमोलक यानी अमूल्य. दी, दी मतलब दिया. कृपा, कृपा यानी कृपा. अपनायो, अपनायो मतलब अपना लिया या तो स्वीकार कर लिया. पूंजी, पूंजी यानी धन. सबे यानी सब, सबे यानी सब. खोवायो मतलब खो दिया. खर्चे, खर्चे मतलब खर्च होना. लेवे, लेवे मतलब ले. बढ़त, बढ़त यानी बढ़ती हैं, बढ़ती हैं. सवायो यानी कि सवाई. सत, सत यानी सत्य. खेवटिया मतलब नाव खेने वाला. खेवटिया मतलब नाव खेने वाला. भवसागर, भवसागर यानी संसार रूपी सागर. भवसागर यानी संसार रूपी सागर. तरी आयो, तरी आयो मतलब पार कर लिया. नागर मतलब चतुर. हरखी मतलब हर्ष. जस, जस मतलब यश. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मीराबाई जो हैं वो कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी धन जो है वो प्राप्त कर लिया है. तो मीराबाई कहती हैं कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, यानी भगवान रूपी रत्न जो हैं वो मैंने प्राप्त कर लिया है. मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है. मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है.
मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी जो है वो मैंने प्राप्त कर ली है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर उसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई वृद्धि होती है। मीराबाई कहती हैं कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार सागर पार कर लिया। मीराबाई कहती हैं कि मैं खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मीराबाई का जो कहने का तात्पर्य है ये है कि मीराबाई ने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मीराबाई ने अपने सद्गुरु की कृपा से ये जो राम नाम रूपी रत्न है ये प्राप्त किया है और ये अनमोल रत्न उसे उनके गुरु की कृपा से मिला है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने इस संसार में अपनी लाज जो है वो त्याग दी है और अब मैं जन्म जन्मांतर की जो पूंजी है उसे मैंने प्राप्त कर लिया है। ये ऐसी पूंजी है कि जो न खर्च होती है और न चोर उसे चुरा सकता है। यानी कि अगर हमने पैसे और धन दौलत एकत्र की है तो कभी भी हमें डर लगता है कि चोर आएगा और उसे चुरा कर ले जाएगा और खर्च करने पर वे कभी कम भी हो सकती हैं। लेकिन मीराबाई ने जो राम नाम रूपी धन की पूंजी पाई है ये पूंजी ऐसी है कि न तो वो खर्च करने पर कम होती है और न चोर उसे चुरा सकता है। वो दिन दिन सवाई बढ़ती जाती है, प्रतिदिन उसमें वृद्धि होती है। तो मीराबाई कहती हैं कि इस सच्चाई की नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु यानी कि खेवनहार यानी कि नाव खेने वाले खिवैया यानी उनके सद्गुरु की कृपा से संसार सागर जो हैं उस संसार सागर को उसने पार कर लिया है। मीरा कहती हैं कि खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का वो गुणगान करती हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે આ પદને થોડું આપણી માતૃભાષામાં પણ સમજી લઈએ। મીરાબાઈ કહે છે કે મેં ઈશ્વર રૂપી રત્ન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે। મારા સદ્ગુરુએ મારા પર કૃપા કરીને આ અણમોલ રત્ન મને આપ્યું છે। મેં આ અણમોલ રત્ન અપનાવી લીધું છે। મેં આ સંસારમાં મારી લાજ તજી દીધી છે અને હવે જન્મ જન્માંતરની આ પૂંજી છે એ મેં પ્રાપ્ત કરી છે। આ એવી પૂંજી છે જે ખર્ચ થતી નથી અને જેને કોઈ ચોર ચોરી કરી શકતો નથી। એટલું જ નહીં, એ જેટલો ખર્ચો કરીએ એટલો એ રોજને રોજ વધતી જાય છે। એટલું જ નહીં, એમાં દરરોજ સવાઈ વૃદ્ધિ થતી રહે છે। મીરાબાઈ કહે છે કે સચ્ચાઈની આ નૌકા પર સવાર થઈને મેં મારા સદ્ગુરુ રૂપી નાવિકની સાથે આ સંસાર રૂપી સાગર પાર કરી લીધો છે। મીરાબાઈ પ્રસન્ન થઈને પોતાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગુણગાન કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કહેવાનો અર્થ એવો છે કે મીરાબાઈએ જે છે એને રામ નામ રૂપી રતન છે એ પ્રાપ્ત થયું છે, એવું ધન પ્રાપ્ત થયું છે। મીરાબાઈ કહે છે કે મને મારા સદ્ગુરુએ એવું અમૂલ્ય વસ્તુ આપી છે કે એ અમૂલ્ય વસ્તુ છે એ ક્યારેય જગતની અંદર ખૂટી જવાની નથી। કે છે મારા સદ્ગુરુએ મારી ઉપર ખૂબ મોટી કૃપા કરી અને મને મારા આ જન્મ જન્મની પૂંજી આપી છે। મીરાબાઈ કહે છે કે આ એવી પૂંજી છે કે જે એનો ખર્ચ થતો નથી, કોઈ ચોર એને ચોરી શકતું નથી અને ખર્ચવાથી એ વધારે ને વધારે એમાં વૃદ્ધિ થાય છે। મીરાબાઈ કહે છે
કે ખર્ચે નહીં કોઈ ચોર ન લેવે, દિન દિન બઢત સવાય, એટલે કે કોઈ એનો લઈ પણ જતું નથી, કોઈ એની ચોરી પણ કરી શકતું નથી અને દિવસે ને દિવસે એમાં વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે મીરાબાઈ કહે છે કે મને તો મારા સદગુરુએ સતની નાવ આપી છે, જે સતની નાવ પર બેસીને હું આ ભવસાગર તરી જઈશ. મીરા કહે છે કે મારા પ્રભુ તો ગિરધર નાગર છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. હું હરખે હરખે એનો જશ યશ ગાઈશ. आम विद्यार्थी मित्रों, मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्त की अनन्य भक्ति, कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति करती थी और उनके प्रेम में वो दीवानी हो गई थी. यहाँ पर एक पद है जिनमें उनकी सास कहती हैं कि मीराबाई खुद लिखती हैं कि लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासीरी. मीरा की लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है और मीरा की सास कहती हैं कि मीरा जो है वो कुल का नाश करने वाली कुलनाशी हैं. विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी रे. मीरा के जो दियर थे उन्होंने मीराबाई के लिए विष का प्याला भेजा था, जिसे पीकर मीरा, तो मीराबाई के ऊपर कई प्रकार के लोगों ने अलग अलग बातें की थी, फिर भी मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी और वो आज भी कृष्ण भक्त की परम दीवानी हैं और आज भी मीराबाई के जो पद हैं वो संसार में गाए जाते हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे. अस्तु.